Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapad Kamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaitam Surato Pangur Mama Mandamate Gatir Matsarvasva Padam Bhojo Radha Madan Mohanam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha. हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। उसमें पहले अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षाधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो पुरुषोत्तम महीना में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को आगे बढ़ाते हुए हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि चौथा अध्याय का 34वां श्लोक वैसे भी सब जानते हैं। तो आज हम चौथा अध्याय का 39 और 40वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 439-40 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अनुवाद: जो लोग दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 3 चीज बताई है इस श्लोक के अंदर। श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो पहले आदौ श्रद्धा बहुत परम आवश्यक है। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम सिर्फ कर्म करेंगे, श्रम ही एवं केवल। श्रद्धा हमें साधु गुरु और शास्त्र में होनी चाहिए। इस गीता के 34वें श्लोक में बताया था कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनाः तत्त्वदर्शिनः। तो वो ज्ञान की बात यहाँ पे हो रही है कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर श्रद्धा नहीं है तो हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। 3 चीज बताई है। दूसरी, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास। जिसको भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो समझता है। मानना और समझना 2 अलग बात है। मैं मानता हूं नहीं कहूंगा, जो समझता है, जो जानता है। मानने में कभी गलत चीज भी मान सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मानना और होना 2 अलग अलग चीज है। हम श्री कृष्ण को भगवान मानते नहीं, हम श्री कृष्ण भगवान है ये जानते हैं और उनके पर पूर्ण विश्वास है। तो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कि पहले गुरु के पास जाना है, भगवान से चली आ रही परंपरा में जुड़ना है, गुरु की सेवा करके वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। वो तत्व ज्ञान हमारे साथ सहृदय श्रद्धा के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे? महामंत्र के जाप के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे शरीर के ऊपर पसीना है, मैल है, स्नान नहीं किया है, तो हम स्नान करके शुद्ध हो सकते हैं। हमारे कपड़े गंदे हैं, पसीने वाले हैं, तो हम कपड़े को डिटर्जेंट में डाल के, मशीन में डाल के धो सकते हैं। लेकिन हमारे हृदय की जो मलिनता है
लोग यही नहीं समझते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, भगवत गीता मुझे मालूम है, लेकिन ये सब कहाँ से आ रहा है वो उनको पता नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर गीता को जानता है तो वो जानने वाला व्यक्ति पहले दीक्षित होना चाहिए। अगर वो महामंत्र का जप करता होना चाहिए तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं मानता हूं, मैं जानता हूं। जानने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी अपने मन के द्वारा, मनोधर्म के द्वारा गीता को बोलने का प्रयास करें। गीता क्या है? हमें कोई भी व्यक्ति गीता का ज्ञान का प्रचार कर सकता है। कब? जब ईच वन टीच वन, जो पोस्टमैन बनकर गुरु महाराज के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो हम दूसरों को एज इट इज बताएं। अगर 5 साल का बच्चा कहता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो गुरु बन सकता है। लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है कि उनको उतना कहना है जितना पूर्ववर्ती आचार्य और साधु गुरु और शास्त्र ने कहा है, और उसकी विधि है दीक्षा प्राप्त करके ये करना, ये सुविधि है। तो महामंत्र का जाप कब से प्राप्त होता है? अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में तो आ गए, दीक्षा ले लिया, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने में हमारी गड़बड़ चल रही है, तो ये प्राप्त नहीं होगा। ये प्राप्त आंशिक होगा या नहीं हो सकता है। ये प्राप्त करने का मापदंड है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। महामंत्र के जाप से सारे हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो हमारे हृदय को साफ करे। ये आजकल आधुनिक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक भी हमारे हृदय को अंदर से साफ नहीं कर सकते। वो मैकेनिकल भी नहीं कर सकते, तो आध्यात्मिक कहां से करेंगे? वो तो हमारा ब्लॉक, जो वाल्व में ब्लॉक है, वो डॉक्टर लोग वो ब्लॉक निकाल के वो पाइप को काट के नई पाइप जोड़ देते हैं, बस। उसके अंदर साफ करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। वो तो मटेरियल है, वो एसिडिक मटेरियल है, वो भौतिक है। लेकिन हृदय के अंदर और विचारों के अंदर जो मलिनता है, वो मलिनता हमारे अंदर अनेक जन्मों से चली आ रही है, वो वासना। और वो वासना की सफाई इस जगत में हम कोई भी भौतिक चीज लेकर उसको नहीं कर सकते। क्योंकि जब, जैसे भी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भौतिक समस्या का इलाज आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार हमारा अनुशीलन होता है तो हम सारी भौतिक समस्या को दूर कर सकते हैं, इस जैसे इस श्लोक में बताया है। लेकिन अगर हम इस चीज को आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा साफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम भौतिक समस्या भौतिक पदार्थों से या भौतिक बुद्धि से अगर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं तो समस्या और बड़ी हो जाएगी। ये पिछले क्लास में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये भौतिक मलिनता, ये भगवान की माया ऐसी है कि जो माया में है उसको भी लगता है कि मैं गीता का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन वो स्वयं माया में है। माया को कैसे दूर समझा जाए? तो वो अपने आचरण में क्या क्या चीजों से, भौतिक चीजों से डिटेच हो सकता है, उसके ऊपर उसका मापदंड है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति का बैरोमीटर, थर्मोमीटर क्या है कि हाउ मच वी आर डिटेच विथ मटेरियल थिंग्स। अगर हमारे पास मटेरियल थिंग है और हम उसमें आसक्त है तो हम स्पिरिचुअल एडवांस नहीं हो सकते। हाँ, युक्त वैराग्य, जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो युक्त वैराग्य में रहते हैं। लेकिन कैसे? भौतिक चीजों में आसक्ति न रखकर। अगर भौतिक चीजों में आसक्ति है तो हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की हमारी गति स्लो हो सकती है या मिट सकती है। इसीलिए
हमें बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी जैसे हमें दूसरों की मलिनता दिखाई देती है, इस जगत के अंदर सभी लोगों को क्या होता है, दूसरों की मलिनता बहुत इजीली दिखाई देती है। तो व्यक्ति इतना तो बुद्धिमान होने चाहिए कि हमारे अंदर जो मलिनता है, अगर हम अंदर से शुद्ध नहीं, हमारे परमात्मा के द्वारा बताए जाने पर भी हम अनादर कर रहे हैं, तो उस समय गुरु जो होते हैं, जो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, तो जो गुरु होते हैं वो उसके पास प्रश्न करने से हमारी भौतिक मलिनता कम हो सकती है। क्योंकि भौतिक मलिनता हमें बाहर से भी दिखती है, अंतर से भी दिखती है। अंदर से जो दिखती है वो परमात्मा हमें उपदेश देते हैं, लेकिन हम परमात्मा के उपदेश को कभी कभी अनादर कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन की मलिनता अभी तक गई नहीं है। तो इसीलिए हमें साधु गुरु और शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। और भौतिक मलिनता दूर करने के बाद इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय पर संयम रखे। तो भगवान ने जैसे हम बताया है कि हम इंद्रियों को कैसे संयम करें। युवा वर्ग के लिए इंद्रिय नियमन बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है। तो कठिन, ऐसे हमारी जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है भगवान के द्वारा बनाई गई, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। इस प्रणालिका के अंदर अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें इंद्रिय नियमन में बहुत तकलीफ होती है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें कोई भी कार्य, इंद्रिय नियमन का कोई भी कार्य कृष्ण को सेंटर में रख के किया जाए। जो चीज का इलाज हम नहीं कर सकते तो उस चीज हमारी मजबूरी है करने की, तो हमें भगवान कृष्ण को सामने साक्षी मानकर करना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो हमारे कर्म बंधन को दूर करने के लिए सक्षम है। हाँ, वो गीता में आगे बताया जाएगा कि सतत भगवान का चिंतन करते हुए युद्ध करना होगा। तो इंद्रिय नियमन भी हमारा युद्ध का एक अंग है। तो वो अंग को भी दूर करने के लिए हमें नित्य भगवान का सतत नाम स्मरण करना होगा, जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने किया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने जैसे माया का प्रभाव आया सामने और माया ने कुछ प्रपोजल रखी, तो उन्होंने तुरंत भगवान को याद किया, प्रभु आपने तो माया भेज दी है मेरी परीक्षा करने के लिए। और उन्होंने, माया बाजू में बैठी थी, उन्होंने बहुत तीव्रता से भगवान को और ज्यादा फोकस करके उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप किया। तो अगर हम इंद्रिय नियमन में फेल हो जाते हैं या सांसारिक भौतिक माया में फंस जाते हैं, तो हमें कोई भौतिक व्यक्ति बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो भी माया का विक्टिम हो चुका है। हमें बाहर निकलने वाला व्यक्ति कौन है? गुरु है, जो त्रिकोणातीत होते हैं, जो प्रभुपाद की डिसाइपल है। तो उनके द्वारा हम बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए ये दीक्षा आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, हम क्लास भी सुनते हैं प्रभु जी का, हम चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन दीक्षा का क्या जरूरत है? तो दीक्षा का जरूरत यहाँ पे पड़ता है कि हम माया में रहते हैं और माया से बाहर लांघने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो त्रिगुणातीत होना चाहिए, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से पर है, जो पर व्यक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य गण हैं। तो ये सभी जीवों के कल्याण हेतु, अपने गुरु का आदेश हेतु वो कार्य करने में लगे हैं कि जो माया में फंसे हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु करुणा सागर थे, वो करुणा सागर, उनकी करुणा प्रभुपाद के द्वारा उनके शिष्यों में तक पहुंच गई है और उनके शिष्यों के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है ये करुणा। और ये करुणा ऐसी है कि
अकारण कृपा है, कॉजलेस मर्सी जिसको कहते हैं। हम भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए लायक कैंडिडेट न होते हुए भी वो गुरु कृपा करके हमारे पूर्व जन्म के पाप पुण्य लेने के लिए तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप भी हमारा पूर्व जन्म का पाप पुण्य नहीं ले सकते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहला हमारा गुरु माता पिता है, हम कहते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है, जिसके पास हम दीक्षा लेते हैं, वो गुरु हमारे पूर्व जन्म के पाप भी लेते हैं और पुण्य भी लेते हैं। उन्होंने भी नहीं देखा है, न दीक्षा लेने वाले ने देखा है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का है। लेकिन कौन सी शर्त पे लेते हैं? कि हम आजीवन 4 नियमों का, धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे और आजीवन भगवान को नहीं भूलने के लिए हम कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। तो जप करने से हमारा जो भौतिक प्रकृति की जो माया है, वो माया पे हम लांग सकते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति सुयते सचारम हेतुना ने कहते हैं जगत भी परिवर्तन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है और भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। इसलिए माया में तम तरंती तेज, जो माया को कौन तार सकता है? कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती। तो जो भगवान कहते हैं कि मेरी माया बहुत दुर्लभ है करने के लिए, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है वो। भगवान कृष्ण की शरण में जाने के लिए हमें भगवान के द्वारा भेजे गए बोनाफाइड गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने भी दीक्षा ली है। जैसे अर्जुन ने दीक्षा लेकर भगवान ने गुरु के पास कैसे जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो अच्छी तरह हमें 34वें श्लोक में समझा दिया है। तो ऐसे हमें वो प्रणालिका से, वो कार्य पद्धति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मलिनता दूर होना कोई मामूली बात नहीं है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, एक तिनखा जो होता है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि दावा नल लगा दे और सारे जंगलों को, वृक्षों को, एकरों की जमीन में दावानल पसर के आग में साफ हो जाते हैं। हमारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गुरु जब दीक्षा देते हैं तब यज्ञ की आहुति जब शिष्य करता है तो उनके उस समय उनके पूर्व जन्म के सारे पाप दावानल में नष्ट हो गए। लेकिन होता क्या है कि दावानल तो नष्ट हो गया, हमारा पाप पुण्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसका जो बीज है वो बीज जमीन में छुपा हुआ है। वृक्ष साफ हो गए, ग्रीनरी साफ हो गई, जंगल साफ हो गया, लेकिन उसका बीज जमीन में छुपा हुआ है। और वो बीज जैसे बारिश आएगी, जैसे सही टाइम आएगा, जैसे पाप करने का मौका मिलेगा, फिर से वो पाप करने लगेगा। तो उस समय हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करेंगे तो वो उसके मूल को भी उखाड़ के फेंकेंगे। इसीलिए हम मंगलाचरण में कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरु उन्मिलितम येन, उन्मिलितम उखाड़ के फेंक देते हैं, उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हमारे गुरु हैं वो ऐसे करुणा प्रदान निदान है कि हमारे पर इतनी करुणा करते हैं कि बीज, जो पाप के बीज, पाप करने की वृत्ति के बीज है हमारे अंदर, कि जो हम नहीं देख सकते, हम पाप करते हैं, उससे बाहर निकाल के हमारे बीज को साफ करने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए दीक्षा देने के टाइम हमें महामंत्र प्रदान करते हैं। अभी कोई कहेगा कि मैं दीक्षा न लेकर महामंत्र करूं तो क्या होता है? जब दीक्षा न लेकर महामंत्र करेंगे तो हमारा पाप करने की वृत्ति तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन पूर्व जन्म के पाप जो हमारे अकाउंट में पड़े हैं उसका हिसाब कैसे करेंगे? हाँ, जब हम गुरु दीक्षा देते हैं तो यज्ञ में हमारे सर्व पूर्व जन्म के पाप
नष्ट हो जाते हैं। अभी अभी कोई नया व्यक्ति है, दीक्षा नहीं लेता है, लेकिन फिर भी चांटिंग करता है, तो वो चांटिंग करता है तो उसकी पाप करने की वृत्ति पे तो ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि महामंत्र का जाप चल रहा है। लेकिन वो जाप करते समय उनके पाप करने का जो बीज है, जो प्रॉपर प्रणालिका से प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि गुरु के साथ दीक्षा लेकर प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दीक्षा का मोल है सेवया, गुरु की और भगवान की सेवा करके, और वो सेवा नहीं की है और गुरु का ज्ञान का उपयोग किया है। तो गुरु के ज्ञान का उपयोग करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि कलयुग में जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जाइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। तो उसका उन्नति तो निश्चित है, वो सुकृति तो निश्चित है, जो चैंटिंग करता है, दीक्षा नहीं लेता है तो भी। लेकिन जो प्रॉपर प्रणालिका से आता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। वो एक वैदिक पद्धति है जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं। जैसे कि हम प्रधानमंत्री को जाने के पास मिलना है तो उसके सेक्रेटरी के पास जाके हमें अपॉइंटमेंट लेके उसके वो जैसे बोले वैसे उतनी ही मिनट में हमें प्रधानमंत्री को मिल सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक वैसे ही हमें गुरु वो मापदंड देते हैं, वो सेक्रेटरी है जो बोनाफाइड सेक्रेटरी है भगवान के, वो हमें मापदंड देते हैं कि कैसे हम भगवान को मिल सकते हैं और कितनी देर। वो तो वहां इटरनल टाइम है, न तद भासयते न सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परम। वहां तो इटरनल है, शाश्वत। तो भौतिक जगत में हमारा जो समय है हमारे पर पाबंदी कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये समय पाबंदी नहीं करेगा। इसलिए हमें दीक्षा लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के उनके गुरु जो थे, उनके गुरु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को मूर्ख कहा, पागल कहा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्ख मानकर, अपने आप को मेरे गुरु ने कहा कि मैं मूर्ख हूं, तो मूर्ख मानकर संकीर्तन करने लगे, नाचने लगे। वो नाचने लगे, उन्होंने ये मूर्खता को स्वीकार कर लिया। तो गुरु के पास हम जानते हैं कि महामंत्र का जप लेना है, महामंत्र का जप हमने पहले भी किया है, लेकिन जब दीक्षा के बाद प्राप्त होता है तब हम एक्चुअल में हमारे हृदय में प्रसन्नता प्रदान होती है। वो प्रसन्नता इसलिए प्रदान होती है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य का भार हमारे अंदर हल्का हुआ, और उसके बाद हम धीरे धीरे, अगर हमारी नीति सही है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमें धैर्य रखना चाहिए कि 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव को एक ही जन्म, मनुष्य जन्म में उसका उद्धार होने वाला है। तो कम से कम मनुष्य जन्म के लिए उनको सही नीति से अपना के उसका उद्धार करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ उसी मापदंड पे आगे बढ़ना चाहिए। जितना हम कृष्णमय बनेंगे, कृष्ण भावना भावित बनेंगे, उतना हम इंद्रिय नियमन कर पाएंगे। अगर जितना हमारा कृष्ण भावना भावित हमारा वीक होगा, इतने हम इंद्रिय के गुलाम बने रहेंगे। तो इससे अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। तो ये बोलने से नहीं हो जाएगा, इसकी विधि है और विधि के बाद भी संयम रखना पड़ेगा। जैसे जैसे याद आता है संयम रखना पड़ेगा। ये एक जड़ अवस्था नहीं है कि हम इंद्रियों पर संयम रख के योगी बन जाए। ये तो सतयुग की बात हो सकती थी, कलयुग में ये मानवी के लिए दुर्लभ है। हम इंद्रिय नियमन ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमें इंद्रिय नियमन करने के लिए हमें उससे अधिक पावरफुल शक्ति हमारे अंदर लानी होगी, और वो महामंत्र के द्वारा। तो जब महामंत्र नहीं है और जब हम महामंत्र के द्वारा इसका पालन नहीं करते, दीक्षा लेकर पालन नहीं करते, तब तक ये शक्तियां प्रॉपर डायरेक्शन में हमें मिलना असंभव हो जाता है। और संभव हो जाता है तो अभी कभी कभी अनेक जन्मे समसिद्धि। इसके सभी के ऊपर भगवान की करुणा चाहिए। भगवान की करुणा का अनुभव हमें करना चाहिए। जैसे दूध से
दही और दही से मक्खन और मक्खन से घी निकलता है, वो घी पहले दूध में दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो मंथन किया, उसके पीछे रखा, उसको तपाया, इसके बाद वलोना किया, तपाया, उसके बाद जाके घी मिला। मंथन तो करना पड़ेगा जीवन में, और वो मंथन हम भौतिक चीजों से मंथन करेंगे तो जहर ही प्राप्त होगा। वो असुर और देव का जो मंथन हुआ तो पहले समुद्र मंथन में पहले जहर प्राप्त हुआ था। तो हमारे अंदर जो गलत विचार है, पापमय विचार है, पापमय दृष्टि है, वो पहले बाहर निकलेगी जब महामंत्र का जप करेंगे। लेकिन ये मंथन हो रहा है, ये निश्चित है, ये समझ लेना। जैसे 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 मंथन बढ़ता जाएगा तो भगवान मोहिनी अवतार लेकर अमृत लेकर आएंगे। हमारे लिए गुरु महाराज अमृत लेकर प्रकट होंगे, और वो गुरु हमें महामंत्र का अमृत प्रदान करेंगे। और वो पीते 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 हमारा धैर्य होना चाहिए, और वो धैर्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी भगवत धाम प्राप्त करने की जो प्रयोजन है वो प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि साधु गुरु और शास्त्र का आशीर्वाद से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर साधु गुरु और शास्त्र का आशीर्वाद होगा तो भगवान का आशीर्वाद मिल पाएगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो व्यक्ति को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये पूर्ण ज्ञान की बात हुई। अभी इसके आगे वाले श्लोक में चलते हैं। अग्नज्ञानस्य श्रद्धाधानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अनुवाद: किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हाँ, तो संशय आत्मा के लिए न इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। तो इसको कैसे समझेंगे हम कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, पहले तो श्रद्धा नहीं है तो हमारा ABCD का A ही नहीं लगेगा, तो Z तक कैसे पहुंचेंगे। और अज्ञानी का मतलब क्या है? जो भगवान कृष्ण का आश्रय छोड़ और कहीं भटक रहा है, और किसी जगह उसका फेथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। यानी कि कृष्ण को छोड़कर चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, हिंदुओं में भी 33 करोड़ देवी देवताओं में बटे हुए हो, तो ये सभी लोग अज्ञानी हैं जब तक वो एकले ईश्वर कृष्ण को नहीं भजते। जब एकले ईश्वर कृष्ण को भजना है, यानी कि भगवान को भजना है। कई लोगों को भगवान कौन है उसका पता नहीं है, तो उसकी श्रद्धा वो काम में नहीं आएगी। मुझे वो क्या बोलते हैं, गीता में भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम है। वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट भगवान कृष्ण को भजते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भजने से हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। जिसको भजते हैं वहां जाएंगे। तो इसलिए उसको अज्ञान कहते हैं। जब तक वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को छोड़कर और कोई भी श्रद्धा रखता है दुनिया में, और किसी को भी भजता है, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्मों के बाद जब व्यक्ति को पता चलता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वस्व है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। भगवान कहता है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यन्ते, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अज्ञान की बात हो रही है, यानी कि कृष्ण के अलावा हम किसी को मानते हैं भगवान या श्रद्धा रखते हैं, तो वो अज्ञानता कहलाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान बटा हुआ होता है, कृष्ण को भी मानते हैं लेकिन कहीं देवी देवता से भी डरते हैं। जब देवी देवता से डरते हैं वो भी अज्ञानता है।
हम देवी देवता को भज के देवी देवलोक में जाएंगे जहां से हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाएगा, लेकिन वो अज्ञानता के कारण। लेकिन ज्ञान क्या है? वासुदेवम सर्वम। हम और कुछ नहीं चाहिए हमें इस दुनिया में। अगर इस दुनिया में अगर हमारे पास कुछ भी चाहिए तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे 2 टाइम आपका प्रसाद मिले, शरीर तंदुरुस्त रहे और मन सतत आपके अंदर रहे, बस। ये व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धनवान है, जिसके पास भगवान का नाम का धन है, भगवान से सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाता है और भगवान से आध्यात्मिक तंदुरुस्ती मांगता है। शारीरिक तंदुरुस्ती तो अगर तकलीफ है तो शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना इसीलिए कर सकते हैं कि हमें आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति हमारी बनी रहे। तो इसीलिए सिर्फ हम भगवान से तंदुरुस्ती मांग सकते हैं। लेकिन हम तंदुरुस्ती मांग कर अगर सांसारिक आनंद लेने की चेष्टा करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। कलयुग में कई संप्रदाय बोनाफाइड हैं, कई संप्रदाय बोनाफाइड नहीं है, और सभी लोगों ने अपना अपना शास्त्र बनाया है और सभी लोग वो शास्त्र में विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शास्त्र की अवहेलना की बात है, संदेह की बात है, वो सनातन धर्म के शास्त्र की बात है, भगवान कृष्ण के द्वारा बताया हुआ शास्त्र की बात है कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की बात है। तो उसके अंदर अगर हमें संशय है तो हमारा कोई इलाज नहीं है, तो हमारा मनुष्य जीवन का इलाज नहीं है। उससे अच्छा है कि हम मनुष्य जीवन जिए ही नहीं। अगर हमें भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में संदेह है तो हमारा मनुष्य जीवन नष्ट हुआ समझो। हमारा मनुष्य जीवन पशु जीवन है, पशु तुल्य है। वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद और तात्पर्य में समझाते हैं, ये श्लोक के अनुवाद में बताया है कि वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे का मतलब है वो मनुष्य योनि में नहीं टिकेंगे, वो पशु योनि में चले जाएंगे। इस जन्म में भी चले जाएंगे, पशु योनि का बर्ताव करेंगे, शरीर मनुष्य के शरीर का कपड़ा पहनकर, और उसके बाद वाला जन्म भी पशु योनि में चला जाएगा और 84 लाख योनि के चक्र में वो अपने कर्म का विधान भोगता रहेगा। उसके कई लोग बोलते हैं बहुत कठोर तपस्या करके भगवान प्राप्त करते हैं। भगवान हमारी तपस्या को 1 मिनट की तपस्या को और हजारों साल की तपस्या के बराबर भी मान सकते हैं, और हजारों साल की तपस्या हमारी एक पल भी हो सकती है। भगवान के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हुआ। तो हम ये समझना चाहिए कि हमारी जो यात्रा है, कई लोग बोलते हैं कि मैं 25 साल से चांटिंग कर रहा हूं। अरे बाबा, 25 साल से चांटिंग कर रहा हो तो शायद ब्रह्मलोक की 25 मिनट हुई है। तो क्यों बड़े आवाज से हम बात करते हैं? हमारे अंदर धैर्य क्यों नहीं है? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा, ये हमारे अंदर क्यों जन्म नहीं लिया अभी तक? क्योंकि हम 25 साल की साधना का अहंकार कर बैठते हैं और साधना को अपने आप अपने दुरात्म विषयों से और विचारों से भस्म कर देते हैं। हमारी सुकृति हम भस्म करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है संसार में, गुरु महाराज के आदेश से ये कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के बाद, आज 25 साल के बाद मैं देख रहा हूं कि संसारी लोग कभी कभी अपने पांव पे कुहाड़ी मारते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसका कल्याण करते हैं, हम गुरु के आदेश के अनुसार उनको कृष्ण भावना पहुंचाते हैं, लेकिन वो अपने पांव पे कुहाड़ी मारते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो आगे चलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या क्या बताया। तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य है उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। हम भगवान का गीता का कोट इजीली दे देते हैं सबको, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं करते। विश्वास किसको कहते हैं उसके एग्जाम्पल में बाद में बताऊंगा तात्पर्य के बाद में। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्र में श्रद्धा होती है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान में श्रद्धा का मतलब है भगवान के लिए सांस लेना, भगवान के लिए जीना, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करना। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, भगवान कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है, वो और सदैव संशयाग्रस्त रहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, संशयाग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, क्योंकि उसके कर्म फल क्या मिलेगा, क्योंकि जो कर्म किया था उसमें श्रद्धा नहीं थी, तो श्रद्धा का फल है कृष्ण प्रेम, वो श्रद्धा का फल कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो वहां कैसे दूसरे लोक में कैसे प्राप्त होगा। लेकिन आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लोगों को कि वो लोग इस कोरोना जैसी समस्या में भी कीर्तन करने के लिए शेरी में निकल पड़ते हैं और लोगों के कल्याण के लिए, और वो बड़े प्रसन्न और आनंदमय दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो इस जन्म में भी सुख भोग रहे हैं और ये सुख उनको अगले जन्म में भी सुख, परम सुख तक लेकर जाएगा, क्योंकि वो गुरु के आदेश पे कार्य कर रहे हैं। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। संशय मतलब अश्रद्धा, भगवान की भक्ति मतलब श्रद्धा से शुरू होती है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। तो ये श्रद्धा का विषय है। जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड में, जो व्यक्ति चाहे कहाँ से भी आया हो, कोई भी चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या हिंदू में और कोई सभ्यता में और कोई मानसिक दिशा में जुड़ा हुआ हो, लेकिन भगवत गीता के अंदर उसकी श्रद्धा नहीं है और भगवत गीता के भगवान के वचनों के अंदर उसकी विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति का पुनर्जन्म 84 लाख योनि निश्चित है। जिसको भगवत गीता में पूर्णतया श्रद्धा है वो व्यक्ति ही उन्नति कर पाएगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे, परंपरा से, ये श्रद्धा भी परंपरा से जुड़ी हुई है। अगर हमारे अंदर गीता में श्रद्धा है तो गीता के शब्दों पर श्रद्धा है तो हमें गुरु के पास दीक्षा लेनी होगी। अगर गीता प्राप्त करनी है तो गुरु से दीक्षा लेनी होगी। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्टतया बताते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। हम कभी बोलते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा है, लेकिन उसको हम विश्वास मान बैठते हैं या दृढ़ श्रद्धा निष्ठा मान बैठते हैं। उसको कैसे समझे? तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं कि दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के 10वें माले में एक व्यक्ति ने दो बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधी हुई है और वो रस्सी पे चलने वाला इंसान अपने संतान को सर पे, कंधे पे बिठा के वो रस्सी पे चल रहा है और सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोग के हृदय में चिंता भड़की हुई है कि अरे ये गिर जाएगा तो संतान का क्या दोष, संतान भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। 10वें माले पे चढ़ के दो बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांधी हुई है और वो बच्चे को लेकर रस्सी पे गुजर रहा है। तो उसको बहुत, लोगों को देखने वाले को बहुत टेंशन होती है, बहुत संशय होता है
और वो संशय में वो चिंता मय रहता है कि ये गिर न जाए, गिर जाएंगे तो वो दोनों मर जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति वो रस्सी पे चल रहा है वो एक निश्चित भाव से चल रहा है कि उनको कुछ नहीं होने वाला, और वो कुछ नहीं होने वाला है बल्कि सबके सामने ही चलते 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 सामने वाले बिल्डिंग पे पहुंच जाता है, रस्सी पे चल के अपने बच्चा कंधे पर रखा। अभी वो सभी लोगों को नीचे आके पूछता है कि आप लोगों को अभी कोई संशय है कि मैं ये रस्सी से ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग पे जा सकूं, आप लोगों को कोई संशय है? तो सभी लोग बोलेंगे हमको संशय नहीं है, आप जा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं संशय रहित है। नहीं, फिर वो बोलता है अगर आपको संशय है, आपको मेरे पर भरोसा है, आपने अपनी आंखों से भी देखा है, मेरे पर भरोसा है, तो आप में से कोई भी आपका छोटा बच्चा मुझे दे, मैं अपने कंधे पे बिठा के जाऊंगा। कोई नहीं देने के लिए तैयार होगा। तो उसको कहते हैं विश्वास, उसको कहते हैं दृढ़ता, निष्ठा। जैसे प्रहलाद महाराज को थी कि कुएं में 1000 सांप हैं, जहरीले सांप है, उसमें उसके पिता फेंक रहे थे, तो उनको मालूम था कि ये जहरीले सांप मेरा शरीर ले सकते हैं, मेरी आत्मा को कुछ हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिए उनके अंदर निष्ठा थी, तो उन्होंने कह दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी जगह और कोई होता तो बोल देता ओम हिरण्यक्षाय नमः। क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा की भी परीक्षा होती है, और वो परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है। इसीलिए हमारे अंदर धैर्य एक धन है। अगर धैर्य नहीं है तो हमारी श्रद्धा छिन्न भिन्न हो सकती है। और धैर्य का मतलब है, गुरु ने कहा है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया क्या। इसीलिए हमें जो चांटिंग करता है, हम आज देख रहे हैं कि जो व्यक्ति 5 साल पहले आज हमारे अंदर जो विचारधारा है, अगर इसकी उन्नति को हमें देखना है तो हमें कैसे देख सकते हैं? आज हमारे मन में 1 हफ्ता तक जो मन का विचारधारा चल रही है, तारीख के साथ हमारी बुक में लिख दो। 5 साल चांटिंग करने के बाद हमारी मन की अवस्था है, वो हमारी मन के विचारों जो चलता है, वो विचारों को तारीख के साथ बुक में लिख दो। उसके बाद और 5 साल के बाद आप चांटिंग करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, साधु गुरु शास्त्र पे विश्वास करते, भगवत गीता पढ़ते जाओ, चांटिंग करते जाओ। 10 से बाद आपके मन में जो विचार है वो विचार लिख दो और तारीख के साथ वो लिख दो। और 10 साल के बाद वाला जो विचार है वो पहले वाला साल में जो शुरुआत हुआ था वो साल के विचार के साथ जो लिखा हुआ है उसके साथ कंपेयर कर लो, पता चलेगा हम कहां से कहां आ गए हैं। वैसे अभ्यास से पता नहीं चला, लेकिन हमें पता चला कि हम कहां से कहां आए हैं। तो ठीक वैसे ही हम और 25 साल इसकी मतलब यात्रा चलती रहेगी। अगर भगवान ने चाहा, हमारी पूर्णता प्राप्त हुई, भगवान की अनुकंपा हुई, गुरु की प्रसन्नता हुई, तो हम इसी जन्म में इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो हजारों जन्म से मिली नहीं है, हजारों लाखों जन्म से मिल नहीं पा रही है, वो इस मनुष्य जन्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे अंदर धैर्य और विश्वास, निष्ठा बनाए होना चाहिए। अगर हमने भौतिक बुद्धि लगाई तो हमारा नष्ट संशयात्मा विनश्यति हो जाएगा। अगर हम भौतिक बुद्धि नहीं, हमें आध्यात्मिक बुद्धि लगानी है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब गुरु के वचनों पर और साधु गुरु शास्त्र गीता के वचनों पर हमारे अंदर आगे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। एक एक श्लोक के अंदर, और प्रभुपाद जी ने हमारे जैसे मंद बुद्धि लोगों के लिए तात्पर्य में एक एक वाक्यों में एक एक चीज, एक एक समस्या हमारी समझाई हुई है। अगर वो हमारी समस्या समझने के लिए अगर हम गीता को और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आश्रय लेंगे तो हमारे अंदर सभी समस्या का इलाज मिलेगा, ये गारंटी है। भागवत के अंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु की आखिरी सांस तक जो जो समस्या आने वाली है ब्रह्मांड के, पहले आ चुकी है और आगे आने वाली है, इस सभी समस्याओं का इलाज का जवाब श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में पहले से मौजूद है। तो बुद्धिमान व्यक्ति भटकेगा नहीं,
वहां पे जाएगा। और गीता और भागवत को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शी। अगर ये चैनल से नहीं जाएंगे तो हम गीता को संशयात्मा, जैसे कि लोग एकेडमिक लोग क्या कहते हैं, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैथोलॉजी, ये मैथोलॉजी है, ये फॉल्स हिस्ट्री है, फॉल्स कहानी है। फॉल्स कहानी नहीं है। अगर फॉल्स कहानी होती तो आज नासा ने राम सेतु ढूंढ लिया, वो फॉल्स कहानी का नहीं है, इसका प्रमाण है। रामायण आज से 17 लाख साल पहले हो चुका है, और रामायण 17 लाख साल पहले होने के बाद भी उसकी जो कहानी है, मतलब उसकी जो हिस्ट्री है रामायण में चर्चित, वो हिस्ट्री के मुताबिक भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु मिला हुआ है। और नासा ने, अमेरिकन आज के साइंटिस्ट ने कहा कि पहला मानव निर्मित ब्रिज है जो पत्थरों से बना हुआ है। तो हमारे अंदर जो रामायण में लिखा है उसका प्रमाण चाहिए तो हमारे पास राम सेतु उपलब्ध है। अगर हमारे जीवन की एक एक समस्या जो हमारे अंदर आती है, वो समस्या का इलाज चाहिए तो हमारे लिए मैनुअल भगवत गीता मौजूद है। हमारे घर में टीवी आया, टीवी बिगड़ गया, तो टीवी को कैसे ठीक करेंगे, तो उसका मैनुअल से सर्किट देखनी पड़ेगी। तो वैसे मनुष्य जीवन का मैनुअल है भगवत गीता। और भगवत गीता के समस्या का इलाज नहीं किया तो श्रम ही एवं केवलम पशु तुल्य जीवन होगा और पतन हो जाएगा। कौन मूर्ख है इस जगत में कि अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करेगा। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। ये प्रभुपाद कहते हैं कि जितना हम साधना और गुरु में विश्वास रखेंगे उतना हमारा आध्यात्मिक पद मिलना निश्चित है। हमारी इसको सकाम भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक पद प्राप्त करके भक्त क्या करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। वो डेजिग्नेशन नहीं चाहता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। अन्याभिलाषिता शून्यम, वो कोई डेजिग्नेशन और कोई इच्छा नहीं रखता, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक पद प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करना चाहता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। तो आप सब भक्तों जो गूगल मीट पर अभी लाइव क्लास देख रहे हो, आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। और गुरु की और भगवत गीता की इस महिमा पुरुषोत्तम महीना में हम सब मिल रहे हैं और सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। ये गुरु की कृपा है हमारे पर। हमें नहीं मालूम कि ये पुरुषोत्तम मास की हरि चर्चा, ये भगवत गीता की चर्चा हमें कहाँ तक ले जाएगी। ये हमारे भौतिक मन ये सोच नहीं सकता, ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहा गया। इसलिए भगवान का जो तत्व है वो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। वो हमारे भौतिक मन से हम नहीं चिंतित कर सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम पूर्णतः मैच्योर हो जाएंगे, हम मुक्ति के लिए लायक हो जाएंगे, भगवान की सेवा के लिए लायक हो जाएंगे, तब हमें भगवान की जो ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है, वो ब्रह्मांड में हमें भगवान का पार्षद बन के हमें पहला स्थान मिलेगा। और वहां हमारे नीति नियमों का भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वो हमें ट्रेन करेंगे भगवान की सेवा के लिए। और नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणाएं श्रवणादि शुद्ध चित्तीय करिए उदार। तो उस समय हमें जो नित्य सिद्ध भक्त है वो हमें प्रेरणा देके हमें भगवान की लीला में शामिल करेंगे और ट्रेनिंग देके जब हम पूर्णतया तब भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाएंगे, उसके बाद हम भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया है तो शास्त्रों के आधार पे। तो हमें ये पूर्णतया श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें भगवान की पार्षदों के साथ भगवान के दासानुदास बन के भगवान की सेवा में जाने के लिए हमें गुरु के द्वारा मिली हुई इस भक्ति का
अनमोल रत्न, ये ऐसा रत्न है कि ये जो इंडिया का कोहिनूर हीरा जो एलिजाबेथ के क्राउन में लगा हुआ है, वो कोहिनूर हीरा की कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसा रत्न है, ये ब्रह्मा के पास भी इस ब्रह्मांड में जो मिला हुआ है, ये ऐसा रत्न मनुष्य जीवन में हमें मिला हुआ है। ब्रह्मा की पोजीशन में ब्रह्मा भी बिविल्डर हो जाते हैं। लेकिन ये प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि ऊपर के जो 6 लोक हैं, जो स्वर्ग के लोक है और ब्रह्म लोक है, वहां इतना सुख ही सुख है कि हमें दुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए हम भगवान को भूल जाते हैं। और पाताल लोक में इतना ही दुख और कष्ट है कि कष्ट भोगने में से ही बाहर नहीं आते, तो भगवान को याद करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि एक कष्ट से बाहर आए तो दूसरा कष्ट तैयार रहता है। लेकिन इस मनुष्य लोक में पदम पदम यद विपदम है, लेकिन साथ साथ कुछ सुख कुछ दुख, कुछ सुख कुछ दुख, कुछ सुख कुछ दुख प्राप्त है। तो इसीलिए हमें जब दुख प्राप्त होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और सुख होता है तो दुख का अनुभव भी हमारे साथ है। तो इस अवस्था में हम भगवान को अच्छी तरह याद कर सकते हैं, अच्छी तरह एक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो इस अवसर को न घुमाएं, मनुष्य जीवन को न घुमाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे अपने गुरु को मैं समर्पित करता हूँ, जिनके आदेश के द्वारा ये हो रहा है, और इसमें कोई त्रुटि या कोई गलती और संशय है तो वो मेरी है, कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों का खूब खूब आभार। हरे कृष्णा।